नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की धरती पर उन भारत विरोधियों को दमदार जवाब दिया है जो सारी दुनिया में ये झूठ फैलाते हैं कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। निर्मला सीतारमण ने इस तरह के झूठे सर्वे करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यह चुनौती दी है कि वो भारत आएं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करें। ऐसे हवाई सर्वे से कुछ नहीं होता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है और अगर सही में भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है तो 1947 के बाद इस देश में मुस्लिमों की आबादी कैसे बढ़ती। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है और सरकार उन्हें फेलोशिप दे रही है। आज अपने इस खास कार्यक्रम चर्चा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारत के वो दुश्मन कौन हैं जो सारी दुनिया में झूठ फैलाते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। लेकिन हम चर्चा करें उसके पहले सुनते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मंच पर क्या कहा। India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups. I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. Let them come and let them travel alone India and prove their point. तो इस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है कि कुछ विदेशी सर्वे एजेंसियां भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट तैयार करती हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। आखिर ये लोग कौन हैं और ये भारत के खिलाफ क्यों साजिश रचकर उसे बदनाम कर रहे हैं, इनका असली मकसद क्या है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और इस चर्चा में साथ देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान फिरोज बख्त अहमद, जो पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के। बख्त साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बख्त साहब, हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के विदेशी सर्वे
अक्सर आते रहते हैं, हर 2-3 महीने में एक सर्वे आता है। उस सर्वे में यही कहा जाता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उनकी इतनी चिंता नहीं हो रही है, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं। और जब ये रिपोर्ट्स आती है तो हमारे यहाँ भी इसे हेडलाइंस बनाया जाता है, हमारे कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस खबर को बड़ा चढ़ा के उठाते हैं, राजनीति होती है। ये सच्चाई क्या है एजेंसीज की, ये सर्वे एजेंसीज की? देखिए प्रखर भाई, अभी मैं सुन रहा था मिसेस निर्मला सीतारमण जी को। जी, उनको मैं पॉलिटिशियन नहीं मानता, मैं उनको बहुत ही एक सीनियर डिप्लोमेट कम स्टेट्समैन मानता हूँ। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जी, सारी बातें उनकी ठीक थी, जो बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि आई वांट दैट पीपल शुड कम टू इंडिया एंड दे शुड सी हाउ माइनॉरिटीज आर फ्लरिशिंग हियर। बिल्कुल सही बात थी। ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, कौन सा गैंग कहूँ, वो लुटियंस गैंग है या मोमबत्ती गैंग है या अवार्ड वापसी गैंग है, इन्होंने एक ये समझिए एक सिलसिला बना लिया है कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से जो बात करेंगे नेगेटिव बात करेंगे। और जो आपने अभी कहा कि भाई ये हिंदुस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं बबांग दहल आपके चैनल से जहाँ जहाँ तक मेरी बात जाती है ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान अल्लाह का बबांग दहल शुक्रिया अदा करता है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया या ईरान जैसे मुल्क में पैदा नहीं हुआ। यहाँ बड़ी हमें आज़ादी है। और यहाँ का जो वज़ीर आज़म है वो भी मतलब एक दफ़ा उन्होंने मीटिंग बुलाई थी 2014 में अपने घर के ऊपर, जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी थे और क्लरिक्स भी थे। और उन्होंने बहुत ज़ोर शोर के साथ ये कहा था कि मुस्लिम हमारी संतान की माफ़िक हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा था मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक में जो है कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं एक वाक़या और बताना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं UAE गया था। वहाँ पे अबू धाबी के जो किंग का जो ऑफिस है उसमें एक साहिबा काम करती हैं, वो अरबिक हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, हिजाब, ये सब, अजान। मैंने कहा आपको सही रिपोर्ट नहीं पहुंचती। अच्छा। मैंने उनको सही रिपोर्ट दी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है हिजाब का सिर्फ इतनी सी चीज़ थी कि बच्चियों से ये कहा था स्कूल का एक ड्रेस कोड है, स्कूल तक हिजाब पहन ले, क्लासरूम में ना पहने। ये ख्वाह हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कुछ लॉबीज़ हैं एंड दे हैव बीन फंडेड। बाहर से इनको फंड किया जाता है, चाहे वो ISI से हों, चाहे वो चाइना से हों, चाहे वो कहीं किसी और सेक्टर से हों। ये बड़े अफसोस का मकाम है। और हिंदुस्तान से ज़्यादा महफूज माइनॉरिटीज़ के लिए मैं नहीं समझता कोई और मुल्क हो सकता है। मुसलमान ना तो सऊदी अरब में उतना महफूज है, ना किसी और 57 मुस्लिम देश हैं। और एक बात कह के बात को ख़त्म करूंगा प्रखर भाई, कि एक बहुत बड़े वो थे, राइटर भी थे और वो मतलब मुल्कों में दौरा करके अपना ट्रैवलॉग लिखते थे। उनका नाम था इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते थे अपने टाइम पे वहाँ दौरा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे अच्छा है और सबसे कंफर्टेबल है। ये सारी चीज़ें तारीख में लिखी हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह से हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। फिरोज बख्श साहब, एक बात आती है जब इस तरह के सर्वेज आते हैं तो शक की सुई कुछ भारत में बैठे लोगों पर भी उठती है, क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट करते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। आपने हिजाब विवाद की बात की, ऐसे कई ऐसे विवाद हुए जो यहां पर एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, फिर एक सर्वे एजेंसी आती है और इस तरह की रिपोर्ट दे देती है। तो क्या ये पूरे जो यहां बैठे लोग जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो क्या एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं इस तरह की सर्वे एजेंसीज के लिए? हाँ, ये आपने बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत एक सेंसिटिव सवाल किया, सही सवाल किया जी। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जो कानून है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर का कानून है। उस कानून के अंदर हर एक को इजाज़त है, जो बात कह सकता है वो अपने खुलेआम कह सकता है। उसका कई लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में एक गवर्नेंस तो जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का और अमित शाह साहब का चल रहा है। एक और आपने जो बात कही, एक दूसरा गवर्नेंस, ये टूल किट वाले जो लोग हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, एक उनका गवर्नेंस चल रहा है जो बाहर से फंडिंग उनकी होती है। मसला क्या है, हिंदुस्तान जो है अब जगत गुरु बनने जा रहा है। दुनिया ने देख लिया कि वो मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये वो थाली बजाओ या चिराग जलाओ, और पीछे से तैयारी हुई थी कोविड की वैक्सीन की। पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में हिंदुस्तान की वैक्सीन गई है। तो इंडिया इज़ ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक टू बिकमिंग द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और अमेरिका जैसे
कंट्रीज को, रूस जैसे कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया को तो खैर पीछे छोड़ ही दिया है, इन लोगों को ये परेशानी है कि वजीर आजम मोदी जो हैं उन्होंने जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको साथ लेके चल रहे हैं। और आखिर एक बात कह दूं, एक बात कह दूं, तमाम वो लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं, मुसलमानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। हिंदू बिरादरान वतन को कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के 90-95-99% मुसलमान राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं, देश प्रेमी हैं और संस्कारी हैं। तो ये ठंडक से चल रहा है मुल्क, इसको ठंडक से, प्यार मोहब्बत से चलने दें। आपने एक बात की भी कोविड का जिक्र किया, तो कोविड काल में हमने देखा था कि यहाँ के कुछ जो बड़े मुस्लिम नेता थे या जिनके पास एक बड़े जिम्मेदारी भरे पद थे, उन लोगों ने भी मुस्लिम देशों को पत्र लिखे और भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या इस तरह की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जानी चाहिए? नहीं, देखिए, इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये बहुत गलत चीज है। लगाम क्या, देखिए मैंने फिर आपको कहा कि हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून में हर आदमी को इजाजत है कि वो जिस दर्जे चाहे जो है अपने बात को कह सकता है, खींच सकता है। जो लोग हिंदुस्तान की बाहर, अभी अब आपने याद दिला दिया, मुझे नाम लेना पड़ेगा इनका, राहुल गांधी का। राहुल गांधी बाहर गए, बरतानिया गए, वहां जाके हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। कम से कम अपनी दादी के बारे में तो पढ़ लेते, समझ लेते, सीख लेते। पता नहीं उन्होंने उनके बारे में कुछ पढ़ा है नहीं। वो भी जाके हिंदुस्तान की बुराई नहीं करती थी। जब किसी ने उनसे कहा कि जनता पार्टी जिन्होंने उनको डिस्पोजेस किया था उनके बारे में कुछ, उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान की बुराई, जो भी पॉलिटिक्स है, रोकना चाहूंगा क्योंकि अंबर जैदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। अंबर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम जिस सर्वे एजेंसियों की बात कर रहे हैं जो अक्सर भारत के खिलाफ ये सर्वे इस तरह की रिपोर्ट्स लाती हैं कि भारत के अल्पसंख्यक असुरक्षित, इन्होंने एक करारा जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में दिया है। मैंने आपको अक्सर यूट्यूब में देखा है कि आपके साथ कई पाकिस्तानी पत्रकार भी आपके साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, अपने देश के बुरे हाल बताते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हैप्पी इंडेक्स आया या हंगर इंडेक्स आया, इन दोनों के अंदर भारत को पाकिस्तान से भी नीचे बताया गया। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो आटे की लाइनें लग रही हैं वो कहां लग रही हैं, बम कहां फूट रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो ये क्या पूरी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो भारत के खिलाफ रची जाती है सर्वे एजेंसीज के थ्रू? बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी। सबसे बड़ा ये मैं कहती हूँ, जब भी अगर किसी भी इस तरह के सर्वे या इस तरह के किसी इंडेक्स की बात करते हैं, जब भी ऐसा कोई सर्वे होता है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत को इस पूरे सर्वे की सूची में सबसे नीचे रखा गया है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास चाहे रोटी खाने के लिए ना हो, चाहे उनके पास रहने के लिए ना हो, लेकिन वो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, जो लॉबिंग वो अक्रॉस द ग्लोब करता है, वो उसी के आधार पर उसकी एग्जिस्टेंस है। और वो इसीलिए करता है क्योंकि अगर वो जिस दिन भारत विरोध छोड़ देगा उस दिन पाकिस्तान की पहचान या जो उनका अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान भारत विरोधी जो लॉबिंग करता है उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो उस एजेंडा में बहकर हमारे ही देश के लोग उस एजेंडा का शिकार हो जाते हैं और इस तरह की बातें अपने ही देश के लिए कह जाते हैं। हम भारत के किसी भी, मैं तो भारत और पाकिस्तान के किसी भी तरह के कंपैरिजन को मैं अपने देश का अपमान समझती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो भारत के लिए, जो भारत का इतिहास है उसमें एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भारत के चाहे मुसलमानों की बात करें या भारत के किसी भी वर्ग की, किसी भी क्षेत्र में भारत को आप अगर देखें तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और बहुत सारी जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो भारत की इस जो ये विकास है, जो शक्तिशाली भारत है, ये उनको बहुत आखरता है और इसीलिए वो भारत के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडा अक्सर करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो देश प्रेम है, जो राष्ट्रवाद है, ये आपके अंदर, आपके खून में, आपके डीएनए में होता है और इसके लिए आपको कुछ सिखाने की या कोई भी आपको किसी तरह के रूल, कानून, नियम या कोई लगाम लगाने की जरूरत नहीं होती। हम भारतवासी हैं और ये हमारे अंदर है, हम सबको बड़ा अभिमान है और ये हमारे अंदर हमारी नस्लों से आया है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं होता। जिनकी नस्लों में भारत है, जिनके खून में भारत है, वो हमेशा इसी तरह से जिंदा रहेगा और इसी तरह से उफान मारता रहेगा। और मुझे लगता है कि वो लोग, अच्छी बात कही अंबर, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारमण के अमेरिका में दिए गए बयान की, जिसमें उन्होंने विदेशी सर्वे एजेंसीज पे सवाल उठाया है जो ये दावा करती हैं कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंबर जैदी हैं और साथ में हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब। अंबर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत जब 1947 में जब आज़ाद हुआ उसके बाद हमने लगातार देखा है कि छिटपुट घटनाएं होती रहीं। इस देश में 80 और 90 के दशक में एक दंगों का एक बड़ा दौर भी देखा कि मेरठ में किस तरह से दंगे हुए, भागलपुर में कैसे हुए, मुरादाबाद में कैसे हुए, भिवंडी में कैसे हुए। 2-2, 3-3 महीने तक दंगे चलते थे। लेकिन अब बदलाव हो रहा है, उतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं, हालांकि छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी इन छुटपुट घटनाओं को एक बहुत बड़े स्केल पर दिखाकर ये जो विदेशों के अंदर भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है, ये बहुत बड़ी साजिश नहीं लगती आपको? बिल्कुल, मैं तो हमेशा इस बात को हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे टीवी चैनल डिस्कशंस होते हैं या मैं अपने यूट्यूब पे करती हूँ, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि भारत में जो सरकारें रही जिनका इतिहास दंगों का रहा है, जिनके कार्यकाल में हजारों दंगे हुए, अगर उनका इतिहास निकालें तो बड़े बड़े दंगे, भागलपुर दंगे की आपने बात करी जो महीनों चला था और जिसमें कितने बड़े स्केल पर लोगों की जाने गए, तो उन दंगों को भूलकर वो लोग आज छुटपुट घटनाओं की बात करते हैं। हालांकि किसी भी एक की भी जान अगर जाती है किसी दुर्घटना की वजह से तो वो नहीं है और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वो तो ये है कि मासूम लोगों को पॉलिटिक्स का, राजनीति का शिकार बनाया जाता है अपनी ओछी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। एक बात प्रकाश जी जो आप पाकिस्तान के लिए कह रहे थे कि पाकिस्तान में आटे के लिए आप अगर आंकड़े की बात करें तो जो सरकार है मौजूदा वो आटा बांटने का काम कर रही है जिसमें अब तक 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार 60 से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करती है, जिसमें सिर्फ आटा नहीं है, आटा, चावल, तेल, दालें, मसाले, सारी चीजें शामिल है, चीनी, जो कि बड़ी शांति से बढ़ता है और किस तरह से किसी को पता भी नहीं चलता। तो भारत क्या है, हालांकि मुझे लगता है कि सब इस तरह के इतने सक्षम होने चाहिए कि उन्हें इस तरह के किसी हेल्प की जरूरत नहीं हो, लेकिन भारत सरकार किस खूबसूरती से इतनी बड़ी जनसंख्या को राशन पहुंचाती है। और पाकिस्तान में आप देखिए किस तरह की हालत है कि अगर एक आटे का ट्रक जाता है तो 2-4 जानें चली जाती हैं। तो भारत और पाकिस्तान में जो स्थिति है वो सबके सामने है, लेकिन आप भारत विरोध में सारी चीजें नकार दें आंखें मूंदकर, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दुश्मनी का ही एक इम्कान होते हैं, दुश्मनी के ही आसार होते हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसकी हर अच्छाई को हम बुराई देख लेते हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, हमने देखा कि एक दौर में बहुत मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, लेकिन इस मुस्लिम तुष्टीकरण का आम मुस्लिम को कोई फायदा नहीं मिला। वो जो उसका हाल था वो 40 साल भी उसी तरह का हाल बना रहा। लेकिन अब एक नया टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है कि सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका साथ सबका विकास होता है, तो जब रमेश का विकास होता है तो अब्दुल का अपने आप विकास होता है। तो क्या ये बदलाव आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस सरकार की जो प्रायोरिटी है वो अपीजमेंट नहीं है, इसकी प्रायोरिटी है एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जब नए नए वजीर आजम बने थे तो 2014 में बहुत सारे पतंग वाले, जो गुजरात के पतंग वाले थे, उनके पास गए, कहने लगे भाई हमारा जो काम धंधा है उसमें बड़ी जो है परेशानी हमें हो रही है और बिल्कुल हमारा धंधा पिछड़ गया है, हमारी कुछ मदद कीजिए। उस डेलीगेशन में 90% से ज़्यादा मुस्लिम थे और बाकी 5-10 जो है छुटपुट वो गैर मुस्लिम थे। तो प्रधानमंत्री ने उनको 50 करोड़ रुपए की मदद दी, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने मुसलमानों की मदद की है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो सरकार है ये सबके लिए करती है और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये क्या है कि पिछले आपने जिक्र किया है जो पिछली सरकारें थी उसमें आम आदमी तक
जो है नहीं पहुंच पाता था फायदा, क्योंकि जो ऊपर के लोग थे, मोटे मोटे लोग थे जो करीब रहते थे अपने दरबार के, उन दरबारियों को फायदा होता था। वो लोग उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो चुनावी सत्ते जारी करते थे। सुनिए, मुस्लिम इलाकों में इन सरकारों ने, खासतौर से कांग्रेसी सबसे ज्यादा रही 55-60 साल, इन्होंने बजाय इसके कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल बनाते, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स बनाते, प्लेग्राउंड्स बनाते, अच्छे स्टेडियम बनाते, इन्होंने वहां थाने बना दिए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये, और क्या दिया मुसलमानों को इन्होंने, फलां कमेटी, सच्चर कमेटी, श्री कृष्ण कमीशन, ये सारी चीजें इनके हाथ में थमा दी। और रही बात रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन जो है गैर कानूनी है अगर मजहबी एतबार से दी जाए। ये सारी चीज़ें जो हुई उससे नुकसान हुआ मुस्लिम तबके का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 2014 से मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वोट बैंक की सरकार नहीं है, ये आम सरकार है। और वज़ीर आज़म मोदी ने हिंदुस्तान के अवाम को हिंदू मुस्लिम के सांचे से बाहर निकालकर हिंदुस्तानियत के सांचे में ढाला है। और मैं समझता हूँ यही वजह है कि आज मुस्लिम कंट्रीज़ में उनकी बेतहाशा इज्जत है। 7 मुस्लिम कंट्रीज़ ने उनको बेस्ट अवार्ड्स दिए। उन्होंने 2015 में, इफ आई एम करेक्ट, शायद सूफी कॉन्फ्रेंस भी की थी। उस सूफी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अल्लाह के 99 नेम्स भी उन्होंने जो है वो पुकारे थे। यानी उनकी इतनी इज्जत है कि अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो उनकी यही बिसात पे बना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जब सऊदी अरब गए तो किंग सलमान ने उनके ऑनर में पहले से ही जो रामायण थी उसको अरबिक में ट्रांसलेट करा के और सर पे रखवा के उनको पेश किया। तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो मुल्क है, आप ये देखिए कि यूक्रेन भी मोदी को मानता है और रशिया भी मोदी को मानता है, बाइडेन भी मोदी जी के पीछे हैं और जिनपिंग भी जो है वो मोदी से आगे नहीं जा रहा है। यही वजह है G20 का हेड बना है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है बहुत तेज गाम रास्ते से विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये बहुत से लोगों को, खासतौर से जो कुछ इंटरनेशनल जो है प्लेटफॉर्म्स, उनको चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो या कोई हो, उनके तरह के लोगों, उनको हजम नहीं हो रही है बात। बिल्कुल। अंबर, एक बात मन में आती है बार बार, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। अभी आपने सुना होगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक भारतीय छात्र को चुनाव लड़ने से सिर्फ इसलिए अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि वो छात्र राष्ट्रवाद की बात करता था, वो हिंदुत्व की बात करता था। इसी तरह से अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हार्वर्ड का एक पुराने स्टूडेंट है, पूर्व छात्र हैं वहां के, IPS अधिकारी। उन्होंने हार्वर्ड के मंच पर जाकर ये बात कही कि इस संस्थान के अंदर अगर कोई भारतीय छात्र भारत की तारीफ करता है तो उसे पसंद नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये वेस्टर्न माइंडसेट है जिसकी वजह से इस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स आती है? एब्सोल्युटली, ये वेस्टर्न माइंडसेट जो है वो हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमें जो करिकुलम में पढ़ाया गया इतिहास की किताबों में, तो जो वेस्टर्न कल्चर है या जो उनकी चीजें हैं उनको इस तरह से ग्लैमराइज करके, ग्लोरीफाई करके लोगों के दिमाग में अंदर डाला गया ताकि हम अपने देश का, हमारा अपना इतिहास है, हम दुनिया की सबसे पुरानी हमारा इतिहास है, कल्चर है, तो हम अपनी चीजों को नहीं जान पाए, ना ही अपनी चीजों को जानकर हमें अपने इतिहास पर, अपने जो कल्चर संस्कृति है उस पर कभी फक्र हो पाए। अगर चीजें जान पाते, जो लोग आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बदलाव की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है, ये वेस्टर्न माइंडसेट जो है वो निकाल कर हमें अपने देश की असली चीजें, असली इतिहास लोगों तक पहुंचाना है, जो कि मुझे लगता है कि हर भारतीय का, हर मेरा सवाल ये था कि जो वेस्टर्न माइंडसेट से मेरा सवाल था कि वो लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, चाहे वो यूरोप में बैठे हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि भारत की जो छवि है वो कभी सुधरना नहीं चाहिए, इसीलिए वो सर्वे एजेंसीज इस तरह का, उनकी टूल किट जो है वो इस तरह का कार्य करती है। जी, मैं उसी पे आ रही थी कि वो इस तरह की चीजें, अब देखिए, अब जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, वो हमेशा से भारत को जो जिस तरह से एक अपनी कॉलोनी समझते आए हैं, तो भारत को कभी भी उस दर्जे पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते मेंटली कि भारत आज इतना सक्षम है और इतनी जल्दी उन्होंने इतनी ग्रो किया है। तो ये एक माइंडसेट है, और जो रेसिज्म वहां पर बड़ा कॉमन है भारत को लेकर, जो वहां के लोगों में जो एक मानसिकता है कि भारत के लोग किस तरह से उनको बहुत गरीब, नीचा और एक सब सांप सपेरों वाला एक मुल्क समझते हैं, जबकि सच्चाई उसके विरुद्ध है। भारत एक कल्चरली बहुत रिच है, लेकिन वही है कि वो एक प्रोपेगेंडा का शिकार, वही पाकिस्तान को अपने एजेंडा के लिए हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हैं, और पाकिस्तान को एक वो उस स्टेट की तरह, एक टूल की तरह हमेशा से उन्होंने रखा। एक बफर स्टेट क्रिएट किया गया उन वेस्टर्न एजेंडास को पूरा करने के लिए, जो लगातार भारत
भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना रहा है। और मुझे लगता है कि अगर जब हम भारत के मुसलमानों की बात करते हैं तो जो राजनीतिक पार्टियां रही, जो सरकारें रही, उन्होंने ऊपरी सतह पर तो बड़ा डेवलपमेंट दिखाया, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया। उनको वोट बैंक की तरह उनको एज इट इज रहा, ताकि जैसे कि सचर कमेटी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो उस वक्त अहमद साहब रिपोर्ट्स तो आई, लेकिन उन रिपोर्ट्स पे कभी कोई काम नहीं हुआ। अंबर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। मैं शेयर देना चाहूंगा, आप इससे पहले खत्म करें प्रोग्राम को। भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार हैं, भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार हैं, कृपा प्रभु राम की और कृष्णा का प्यार है। बहुत बढ़िया। तो इसी नोट पर, इसी शानदार शेर के साथ जो है हम इस चर्चा का समापन करते हैं। आप दोनों हमारे साथ इस बैठक में, इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत की नीति अब मुस्लिम तुष्टीकरण से ऊपर उठ चुकी है। आज का भारत सबका साथ, सबके विकास पे यकीन रखता है, और जब विकास होता है तो रमेश के साथ साथ अब्दुल का भी विकास होता है। और बढ़ते भारत और बदलते भारत की तरक्की कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, जिन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दमदार जवाब दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।